بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ سیکنڈ ایئر انگلش ایسے ہے، سیکنڈ ایئر یعنی جو کلاس ہے اس کا ایسے ہے، دا میناس آف ڈرگس امنگ یوتھ۔ دا میناس آف ڈرگس امنگ یوتھ، نوجوانوں میں منشیات کی لعنت۔ اور آج کل جو کہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، نوجوان محرومی کا شکار ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ڈرگ کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ایک قدم اٹھانا چاہیے۔ The menace of drugs among youth. The menace of drugs and drug abuse not only has legal implication. یہ جو رجحان ہے ڈرگ کے استعمال کا نوجوانوں کے اندر، یہ قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا کر رہا ہے۔ It also affects the entire socio-economic fiber of the society. اور یہ تمام معاشی جو پہلو ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے ایڈورسلی، بڑے برے طریقے سے۔ اٹ رن دا انڈیویجول ڈس انٹیگریٹس فیملیز، اور یہ افراد کو الگ کر دیتا ہے اپنے خاندانوں سے، اینڈ ڈسٹرب دا کمیونٹیز، اور معاشروں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ رابری، اسٹریٹ کرائم، وائلنس are largely connected with drug addicts. اور جو ڈاکہ زنی ہوتا ہے، اسٹریٹ کرائمز، جو ہمارے گلی محلوں میں ہونے والے جرائم، اور وائلنس، اور ہم لڑ پڑتے ہیں، لارجلی آر کنیکٹڈ ود ڈرگ ایڈکٹس۔ زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ نشہ لینے کے ساتھ ہے، نشیوں کے ساتھ ہے۔ ینگ پیپل آر مور susceptible ٹو ڈرگ یوز. They often talk about the highs, may not be aware of the many lows. اور ینگ نوجوان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ نشے کی طرف مائل ہیں۔ وہ اپنے جو ہائیز ہیں یعنی اوپر بڑھنے کی خواہش، ان کے بارے میں تو باتیں کرتے ہیں اور نیچے والی چیزوں سے آگاہ نہیں۔ لوز، دا میجورٹی آف ڈرگ ایڈکٹس یوزلی اسٹارٹ ود سافٹ ڈرگز لائک چھالیا، اور زیادہ تر جو نشہ لینے والے ہیں پہلے یہ چھوٹے چھوٹے نشے کرتے ہیں، مثلا چھالیا کھا لیا، گٹکا کھا لیا، پان کھا لیا، اینڈ دین موو ٹو ہارڈ ڈرگس، اور پھر بڑے نشے کی طرف آ جاتے ہیں لائک ہیروئن، افیم اینڈ کوکین کی طرف آ جاتے ہیں etc. دا پرچیز آف ڈرگز الکوہل بائی ینگ پیپل از یوزلی تھرو ڈیلرز آر ایجنٹس۔ یہ جو نشے کا کاروبار ایجنسیاں کرتی ہیں یا لوگ کرتے ہیں، اور وہ خرید کر دیتے ہیں، پہلے لوگوں کو عادی بناتے ہیں، ان کو پہلے خرید کر دیتے ہیں، جب وہ عادی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں صرف ایک فون کال پر۔ their numbers are easily exchanged from one person to another. اور ان کے ٹیلی فون نمبر ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک آسانی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ دا کنٹیکٹ نمبرز آر آلسو وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا ہوٹلز، اور ادر پلیسز، ان کے نمبر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جنرلی ہنڈر فرام دا آئی آف دا ایڈمنسٹریشن، اور ایڈمنسٹریشن کی آنکھوں سے وہ اوجھل رہتے ہیں۔ The youth that takes drugs are more likely to commit suicide. اور نوجوان جو نشہ کرتے ہیں وہ زیادہ تر پھر بعد میں خودکشیاں کر لیتے ہیں۔
कमिट सुसाइड, सुसाइड का मतलब है खुदकुशी करना, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि इन पर बहुत नुकसानदेह असरात हो चुके होते हैं नशे के। दे आर टेकिंग ड्रग्स एडिक्शन अमंग द यूथ इज किलिंग देम मॉरली एंड सोशली। वैसे भी जो नशेई है या नशा करता है नौजवान, वो अपने आप को मार रहा है, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर। वैसे ही आधा तो मरा होता है। एंड ड्रग बैरन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली वेल्दियर, और बड़े बड़े जो ताजर हैं, सौदागर हैं, लीडर हैं इसमें, इस काम के, वो अमीर तर होते जा रहे हैं बाई सप्लाइंग दिस ड्रग्स, ये नशा फराम करके, दैट आर काजिंग अनटोल्ड मिजरी, और जो कि मंजर आम पर ना आने वाली मुसीबतों का बायस बन रहे हैं। ये नशे वो माशरे में पैदा कर रहे हैं, और ये नशा बेचने वालों को असल में पकड़ने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक गैंग है, और जो नौजवानों की सेहतों को तबाह बर्बाद करने पे लगा हुआ है, और इनको अपने ज़ाती मफाद के लिए नशा लगाता है। It is the time that societies and government take a firmer view about preventing and stopping drugs addiction. ये वक्त आ गया है कि माशरों को और हुकूमतों को बड़े सख्त नज़रियात लेने चाहिए और रोकना चाहिए इस नशे को। There should be community plan, there should be community plan बनाए जाएं that should be implemented to stop addiction, और जो नशा रोकने वाले टू ड्रग्स, एडिक्शन टू ड्रग्स, उनको रोकने के लिए प्लान बनाए जाएं। दिस प्लान मस्ट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक दैट यूथ आर यूजिंग, और ये इस तरह के होने चाहिए जिसमें नौजवान को लिया जाए, नौजवानों को। इट शुड बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सच एज एग्जिस्टिंग ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और ये इसको तमीर इस तरह करना चाहिए कि जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं, मसलन जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम पहले चल रहे हैं, इट शुड आल्सो डेवलप शॉर्ट टर्म गोल्स, और इसको शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने चाहिए, और एलिमेंट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम इन एडिशन। और इसके अलावा एक रिसर्च बेस्ड जो है इसके मुतल्लिका वो प्रोग्राम भी मंजर आम पर लाने चाहिए। द कम्युनिटी प्लान मस्ट प्रोजेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और जो कम्युनिटी है उसको बनाने चाहिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल एंड इन एडिशन, के रिसोर्स जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे। The community plan must also incorporate ongoing assessment to evaluate the effectiveness of their preventive measures and strategy. जो स्ट्रेटजी बनाई जाए या जो इक़दामात उठाए जाएं उसको जांचने के लिए कि कितना असर अंदाज हो रहे हैं, ये भी उसके साथ ही जोड़ दिया जाए चीज़ें, कि उनको जज भी साथ साथ कर लिया जाए कि कितने असर अंदाज हो रहे हैं, माशरे से रोक भी रहा है या नहीं रोक रहा अभी तक। It is important to know that no one should be stigmatized against because of all his dependence on drugs, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किसी को मुकम्मल तौर पर स्टिग्मेटाइज नहीं किया जा सकता, और जो कि इन्हिसार करता है नशे पर। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मस्ट ट्रीट यूजर्स एज विक्टिम रादर देन क्रिमिनल्स, और लॉ फोर्सिंग एजेंसी जो हैं उनको जो ड्रग लेने वाले हैं इनको शिकार किसी का तस्वर करना चाहिए, जराइम करने वाले तस्वर नहीं करना चाहिए। ड्रग डिपेंडेंस इज़ ए डिजीज़, और नशे पर इन्हिसार करना एक बीमारी है, नॉट ए क्राइम।
not a crime. ड्रग डिपेंडेंस इज ए डिजीज नॉट ए क्राइम। और जो नशे पर इंसार करते हैं ये एक बीमारी है, जुर्म नहीं है। द रियल क्रिमिनल आर द ड्रग ट्रैफिकर्स। और ज़्यादातर जो जराइम पेशा हैं वो लोग हैं जो कि नशा बेचते हैं। अवेयरनेस कैंपेन थ्रू मैस मीडिया, essay contests, lectures and declamation contests in school। और एक बाकायदा भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है तमाम मीडिया के ऊपर, जिसमें मज़ामीन के मुकाबले हों, लेक्चर हों और स्कूलों कॉलेजों में और ये डिबेट कराई जाए। Colleges or universities should be run to create awareness about the ill effects। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो आगाही मुहिम चलाई जाए जो तलबा को ये आगाह करे कि ड्रग के नुकसानात कितने हैं नशा के। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आर नीडेड टू बी रन एवरी डे ऑन टेलीविज़न। और लोगों को आगाही की जो कैंपेन्स है वो हर रोज़ टेलीविज़न और रेडियो पर चलनी चाहिए। ऑल टेलीविज़न चैनल शुड बी डिवोटेड 5% ऑफ एयर टाइम टू रेज अवेयरनेस। तमाम टेलीविज़न चैनल को 5% अपना नशरियात का टाइम जो है वक़्फ़ करना चाहिए आगाही की मुहिम के लिए ऑन द डिवास्टेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन, और जिसमें बताया जाए कि कितनी तबाही नुकसानात हैं ड्रग लेने के। मोर रिक्रिएशनल फैसिलिटी शुड बी क्रिएट टू टेक द यूथ ऑफ द ड्रग्स। और ज़्यादातर रिक्रिएशनल फैसिलिटी दी जाएं क्रिएटेड उन नौजवानों के लिए और उसके मतबादल ज़राए तलाश किए जाएं जो ड्रग लेते हैं। पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट। वालदैन को बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए एंड शुड कीप देयर चिल्ड्रन बिजी इन हेल्दी। और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को सेहतमंदाना और पैदावारी सरगर्मियों में मशगूल रखें, बच्चे को मसरूफ़ रखें, काम शाम पे लगाते रहें, फारग जो है वो ना फिरने दें। इस तरह कॉलेजों में बहुत बड़ी वबा है कि बच्चे पीरियडों में नहीं जाते और बाहर ग्राउंडों में बैठे रहते हैं और उनके पास मोबाइल भी होते हैं। मोबाइल पे वो ड्रग डीलर्स के साथ कांटेक्ट करके वहाँ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सेफ जगह है, वहाँ पुलिस वगैरह नहीं आती तो वहाँ पर सारा दिन नशा करते रहते हैं। इसके खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। इस मजमून को तलबा पढ़ लें, याद कर लें और ये आगाही मुहिम के तौर पर भी आने के इम्कानात हैं इस साल। और थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इससे आप अंग्रेज़ी बाकायदा जो है वो कोर्स की और स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखते रहें और अपनी अंग्रेज़ी को अच्छा बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें।